Good morning, students. I am Dr. Nra. Today I am going to teach you bio of class 9. Today I have to teach tissue. Let's see tissue. Tissue is of following two types. One is called plant tissue. First of all, I am giving just you the outlook of the various types of tissues we have to study in this chapter, the plant tissue and the animal tissue. Plant tissue is of following two types. One is meristematic tissue and other is permanent tissue. This meristematic tissue is again of three types on the basis of location. One is apical meristematic tissue or meristem, then intercalary meristematic tissue, then lateral meristematic tissue. So far as permanent tissue is concerned, it is again divided into three types. The first one is simple permanent tissue. Second one is compound or complex permanent tissue, and the third one is a special permanent tissue. This simple permanent tissue is of various types. Out of these, we have to study about the parenchymatous tissue, collenchymatous tissue, and sclerenchymatous tissue. Parenchymatous tissue is again of two types, parenchyma and chlorenchyma. The compound or complex permanent tissue is of two types, xylem and phloem, while special permanent tissue is of two types. The first one is glandular and other one is secretory special tissue or it's also known as lacticiferous. So this is all about the plant tissue we have to study in this class. Now I'm going to tell about the chart of animal tissues we have to study. Animal tissue is broadly divided into four types. The first one is epithelial tissue, then connective tissue, then muscular tissue, and last one is nervous tissue. Epithelial tissue is of various types again. It's a squamosal epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar epithelial tissue, or ciliated epithelial tissue, and last one is glandular epithelial tissue. Connective tissue is of
broadly three types: connective tissue proper or proper connective tissue. Second one is fluid connective tissue, and last one is a skeletal connective tissue. Connective tissue proper is of various types. The first one is areolar connective tissue, adipose connective tissue, white fibrous connective tissue, yellow elastic connective tissue, yellow elastic connective tissue, then reticulate connective tissue. So far as the fluid connective tissue is concerned, it's of two types: blood and lymph, and the skeletal connective tissue is again divided into two parts, and this one is bone and cartilage. Now muscular tissue is of three types: striated muscular tissue, non-striated muscular tissue, and cardiac muscular tissue. Striated muscular tissue is also known as striped muscular tissue. Non-striated muscular tissue is also known as non-striped muscular tissue. So this is all about the animal tissue we have to study. Now I'm just going to the main thing what we have to study in this chapter. In the tissue, in this chapter we have to study three things. First, the introduction. Second one is the tissue in plants, and the third one is tissue in animals. First of all, I am coming to introduction. A. What is tissue? टिश्यू क्या है? टिश्यू किसे कहते हैं? Simply we can say that tissue is a group of cells. Rather, it's better to say aggregation of cells. Aggregation of cells which has similar structure, function and origin. तो वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन एक समान हो, सिमिलर हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को या एग्रीगेशन ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं. जैसे स्किन, जहां पे टाइल्स के जैसे सेल्स पाए जाते हैं. इन सारे सेल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सब एक समान होता है. ये कुछ इस प्रकार से सेल्स होते हैं. यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ा बल्ज आउट होता है, पढ़ेंगे इसके विषय में हम लोग. तो ये टिश्यू हो गया. नेक्स्ट, द टर्म टिश्यू
was derived from a French word which means oven, and in Latin to weave. So this is the tissue. The third, the term tissue was coined by Bichet. Bichet. The term tissue was coined by Bichet. Although the term tissue was used in plant anatomy by Engreu. A. The branch of biology that deals with the study of tissue is known as histology. So, histology is a branch of biology that deals with the study of tissues. तो बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें हम लोग टिश्यू का अध्ययन करते हैं उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं. देन फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, वह कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हिस्टोलॉजी की नींव रखी? वॉज द फाउंडर? इट वॉज मार्सिलो मालपीगी. It was Marsilio Malpighi. Marsilio Malpighi. Marsilio Malpighi was the founder of histology. While Bichet is considered as father of histology. So it's a very brief idea about the tissue. You may also know about the anatomy. Let's see. One another term, anatomy, is the branch of biology that deals with the study of internal parts of organisms. It is again of two types: plant anatomy and animal anatomy. In plant anatomy,
we'll say that it's a branch of botany, and in case of animal anatomy it's the branch of zoology, which deals with the study of, in case of plant anatomy, plants, and in case of animal anatomy, animals. So this is very brief idea about the tissue. अब हम लोग इस टिश्यू के बाद आते हैं टिश्यू इन एनिमल्स। टिश्यू इन प्लांट्स बाद में पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग आते हैं टिश्यू इन एनिमल्स। लेट्स सी। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनिमल टिश्यू में 4 पार्ट्स होते हैं, या एनिमल टिश्यूज को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। आज हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं। नर्वस टिश्यू, इसको हम लोग नर्व सेल और न्यूरॉन भी कहते हैं। बेसिक तौर पे इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स को देखेंगे। ये नर्व सेल एक सिंपल सेल की तरह होता है। जैसे हम लोग सेल में देखते हैं कि एक ये प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सेल में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नर्व सेल में भी ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें पाई जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। जब यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाता है तो ये जो रेस्ट पार्ट होता है, इस पार्ट को साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि इस दोनों को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों पाया जाता है। अब नर्वस टिश्यू में, जो कि नर्व सेल्स का बना होता है, न्यूरॉन्स का बना होता है, इसमें क्या होता है देखें इस टिश्यू। बेसिक तौर पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये इस टाइप से ना होके इसके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं या एक्सटेंड कर जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और इस प्रकार से यह प्रोजेक्शंस फॉर्म कर लेता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म का जो प्रोजेक्शन है वह बाहर की तरफ इस प्रकार से यहां तक एक्सटेंड कर जाता है, और इस प्रोजेक्शन को डेंड्रॉन कहते हैं। इस डेंड्रॉन से यही प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस थ्रेड लाइक निकले हुए होते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाता है, और इस स्ट्रक्चर को डेंड्राइट्स कहते हैं। इस दोनों को कलेक्टिवली न्यूराइट्स कहते हैं। इसमें से एक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो नीचे की तरफ चला आता है या किसी एक साइड में एक्सटेंड कर जाता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये फिर बाद में जाके 2 भागों में बंट जाता है,
और इसको बोलते हैं टर्मिनल एंड। इसी टर्मिनल एंड से कुछ बॉब लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है। इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे इसमें निकल जाता है और इसको बोलते हैं एक्सॉन बल्ब। ये एक्सॉन कभी कभी कवर्ड हो जाते हैं कुछ टिश्यूज के द्वारा और इसको बोलते हैं मेडुलरी शीथ, या इसी का दूसरा नाम होता है माइलियन शीथ। तो यह मेडुलरी शीथ या माइलियन शीथ से कवर्ड हो जाता है। यह मेडुलरी शीथ या माइलियन शीथ कहीं कहीं नॉच फॉर्म करते हैं, कंप्लीट सीलिंग नहीं होती है। जहाँ पे यह नॉच फॉर्म करते हैं उस नॉच को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। यह मेडुलरी शीथ ये जो न्यूरॉन का अपर पार्ट होता है वहाँ पे नेक रीजन इसको आप कह लें, इस पे कवरिंग नहीं होती है और इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। इसके मेडुलरी शीथ के बाहर में न्यूक्लियस पाया जाता है अल्टरनेट साइड में। यहाँ पे इस प्रकार से अल्टरनेट साइड में न्यूक्लियस पाया जाता है और इस न्यूक्लियस को स्वान न्यूक्लियस कहते हैं। स्वान न्यूक्लियस। इस स्वान न्यूक्लियस के ऊपर में एक कवरिंग पाई जाती है और इस कवरिंग को न्यूरोलेमा कहते हैं। न्यूरोलेमा जो यहां पे प्रोटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इस साइटोप्लाज्म का यहाँ पे खास नाम साइटोन हो जाता है। न्यूक्लियस तो कह ही सकते हैं, उसको पेरिकार्डियन टर्म यूज करते हैं, पेरिकार्डियन। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे माइन्यूट ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो इसमें काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को निजिल्स बॉडी कहते हैं। निजिल्स बॉडी सिमिलर टू राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से यह हमारा न्यूरॉन हो गया फिगर शोइंग डायग्रामेटिक न्यूरॉन। किसी भी फिगर में नीचे में यह टर्म लिखना बहुत जरूरी है, फिगर क्या शो कर रहा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फिगर शोइंग न्यूरॉन, ब्रैकेट में आप दे देंगे डायग्रामेटिक। तो यह डायग्रामेटिक पिक्चराइजेशन है न्यूरॉन का, नर्व सेल्स का। इसके टाइप्स को और इसके फंक्शंस को थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लें। यह न्यूरॉन्स मुख्य तौर पे मैसेजेस को कैरी करता है। मैसेज को कैरी करने का काम इसका इस प्रकार से होता है। सबसे पहले डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन और फिर एक्सॉन के बाद दो न्यूरॉन के बीच में गैप पाया जाता है और
इसको बोलते हैं एक्सॉन गैप, या इसको बोलते हैं सिनेप्टिकल गैप या सिनेप्टिकल जंक्शन। तो यहाँ पे इस प्रकार से जाता है और उस गैप के माध्यम से फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, साइटोन इस प्रकार से कैरी करता है। हम लोग जो भी अभी देख रहे हैं यह मैसेजेस आपके आइज़ के माध्यम से, इसी न्यूरॉन्स के माध्यम से, इसी नर्व्स के डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन से होते हुए एक्सॉन के माध्यम से फिर सिनेप्टिकल गैप्स के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन में जाता है और इस प्रकार से मूव करते हुए ब्रेन तक जाता है, जहां पे इसका इंटरप्रिटेशन होता है। 10th में इसके विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो इसके टाइप्स के विषय में हम लोग को अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, फिर भी एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको दे दें कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, कई स्ट्रक्चर्स के आधार पे होते हैं, इसका बेसिस अलग अलग होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप्स की, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे, तो एक होगा यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा मल्टीपोलर। यूनिपोलर यानी कि एक ही साइड इससे एक्सटेंड होते हैं, या न्यूरॉन कुछ इस प्रकार से होता है और इसी के माध्यम से मैसेज कैरी भी किए जाते हैं और इसी के रास्ते से मैसेज आते भी हैं साइटोन। तो एक ही पाथवे होता है। बाइपोलर में यहां पे दो पोल्स फॉर्म कर जाते हैं, एक के माध्यम से मैसेज कैरी होता है और दूसरे के माध्यम से यह निकल जाता है। मल्टीपोलर ये एग्जाम्पल है जहां पे एक रास्ते से आता है और यहां पे डिफरेंट पाथ के माध्यम से मैसेजेस साइटोन में आता है और फिर उसके माध्यम से एक एक्सॉन के माध्यम से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मेडुलरी शीथ के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेडुलरी शीथ, इसके आधार पे यह दो प्रकार का होता है, मेडुलेटेड न्यूरॉन और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। उसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के आधार पे यह तीन प्रकार का होता है। एक सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा इंटरमीडिएट या इंटरकैलरी। तो सेंसरी न्यूरॉन या नर्व सेल ये मैसेज को कैरी करते हैं एटमॉस्फेयर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ये हम लोग 10th में विशेष तौर पे देखेंगे। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से यह मैसेज आपके ऑर्गन्स तक जाता है तो इसको मोटर नर्व्स कहते हैं, मोटर नर्व सेल्स कहते हैं, क्योंकि जो भी नर्व्स होते हैं वो ऐसी सेल्स के बने होते हैं और इंटरमीडिएट इस दोनों को कनेक्ट करने वाले को, यह फंक्शन के आधार पे हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यू। अगले क्लास में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।